ضلع پلوامہ کے کنگن علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر میں جیش کا غیر ملکی IED ماہر سمیت 3 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ کنگن پلوامہ میں فوج اور پولیس کے علاوہ CRPF کی مشترکہ ٹیم نے آج صبح ملیٹنٹوں کی موجودگی پر محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کر دی۔ اس دوران ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ کافی دیر تک جاری رہنے والے گولیوں کے تبادلے میں جیش کے 3 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے۔ اس دوران ایک فوجی اہلکار بھی زخمی ہوا ہے، جسے علاج معالجے کے لیے سری نگر کے فوجی اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ہلاک شدہ ملیٹنٹوں کی شناخت پاکستان کا عبد الرحمان عرف فوجی بھائی، جو کہ IED بنانے کا ماہر تھا اور کئی ملیٹنسی وارداتوں میں ملوث تھا، جبکہ 2 دیگر ملیٹنٹوں کی شناخت سرنو پلوامہ کے منظور کار اور رنگبلا پلوامہ کے جاوید زرگر کے طور پر ہوئی ہے۔ ملیٹنٹوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ انکاؤنٹر کی وجہ سے پلوامہ میں آج موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کی گئی تھیں۔ IGP کشمیر وجے کمار نے GOC کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکاؤنٹر کی تفصیلات فراہم کی اور اسے بڑی کامیابی قرار دیا۔ کل مارننگ میں SP پلوامہ کو ایک ہیومن ملا تھا، وہ سری نگر آیا، پھر آفس کو پلان کیے، پھر اس کے بعد واپس بھیجے SP پلوامہ، وہاں کے لوکل آرمی CRPF سے مل کے آپریشن کو پلان کیا، کارڈن لگایا جوائنٹلی، اور آج مارننگ میں انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا۔ اس میں 3 ٹیررسٹ مارے گئے، تینوں جیش محمد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں ایک FT ٹیررسٹ ہے پاکستان کا، جس کا کہ آپ لوگوں کو بہت مہینوں سے، خاص کر کے لاسٹ ویک سے بہت آپ لوگ انتظار کر رہے تھے کب پکڑا جائے گا یا مارا جائے گا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں عبد الرحمان الیاس فوجی بابا یا بھائی، جو ملتان پاکستان کا ہے۔ افغانستان کی لڑائی میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور 2017 سے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں انفیکٹ کی پورے ساؤتھ کشمیر میں ایکٹیو ہے۔ یہ بہت سارے انسیڈنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ دسمبر 2019 میں ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں کامران مارا گیا تھا، یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا 2019 میں۔ یہ ID ایکسپرٹ بھی ہے، اور جو 28 تاریخ کو جو ہم لوگ مارننگ میں ID کو جو ڈیٹیکٹ کیے تھے، آرمی CRP پولیس مل کر اس کو بعد میں نیوٹرلائز کیا تھا۔ اس میں یہ بڑائی بھی تھا، اس کا بہت بڑا منشا تھا، بہت بڑا انسیڈنٹ کرنے کا۔ پولیس آرمی CRPF کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں تو مانتا ہوں کہ اس سال کا ریاض ناکو کے بعد دوسرا سب سے بڑی کامیابی ہے، جس کو ہم لوگ جوائنٹلی مل کے نیوٹرلائز کر پائے، اور آگے ہم لوگ جوائنٹلی اسی ڈھنگ سے بہت کوآرڈینیٹ وے میں سینرجی کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، اور جو کامیابی پراپت کریں گے آپ لوگوں سے موقع آ کے شیئر کرتے رہیں گے۔ تینوں کو ہم لوگ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں اس کو لاسٹ رائٹ کرائیں گے، مجسٹریٹ کے سامنے کرائیں گے، ان کا DNA ہو رہا ہے، پوسٹ مارٹم بھی ہو جائے گا اس کا۔ کنگن پلوامہ میں آج سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئے انکاؤنٹر کے دوران مشتعل افراد انکاؤنٹر کے مقام کی طرف آنے کی کوشش کی اور فورسز پر پتھراؤ کیا، تاہم پولیس اور CRPF نے پتھراؤ کرنے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ کافی دیر تک کنگن اور مرن علاقے میں فورسز اور مشتعل افراد کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستان نے آج بھی ضلع پنچ میں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستانی فوج نے کیرنی اور قصبہ میں ہندوستانی فوجی چوکیوں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ہندوستانی فوج نے پاکستان کی اس ناپاک حرکت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ علاقے کے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس گولہ باری سے تاہم کسی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے، البتہ لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کو سرحد پر اب یہ گولہ باری کا سلسلہ روک دینا چاہیے۔ دکان میں دیکھا ابھی فائرنگ چل رہی ہے، یہ تو برسوں سے چل رہی ہے، آج کی نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھو نا، یہ دیکھو کتنے لوگ جا رہے ہیں، آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب گولہ باری ہوگی تو کوئی گیا تو ایسے ہی چلا گیا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا یہی حال ہونا چاہیے کہ گولہ باری بند ہونی چاہیے۔ شاہ فیصل پر سے پبلک سیفٹی ایکٹ ہٹا دیا گیا ہے۔ شاہ فیصل کے علاوہ PDP لیڈران پیر منصور حسین، سرتاج مدنی پر سے PSA ہٹایا گیا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مختلف سیاسی لیڈروں کے ساتھ ان تینوں لیڈروں پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی تھی۔ سابق IS افسر و جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے سربراہ شاہ فیصل کو گزشتہ سال اگست میں حراست میں لیا گیا تھا اور اس فروری میں ان پر PSA لگایا گیا تھا۔
इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने तीनों लीडरों पर से पीएसए हटाने का खैर मकदम किया। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर और हिलाल लोन को रिहा किए जाने पर मायूसी का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने इन तीनों की भी रिहाई पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी फैसले का खैर मकदम किया। पार्टी के लीडरों रफ़ी अहमद मीर और गुलाम हसन मीर ने महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडरों की रिहाई का मुतालबा दोहराया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 26 हामिला खवातीन, 12 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 डॉक्टरों समेत 100 से ज्यादा अफराद कोरोना के मरीज पाए गए। वादी कश्मीर की अगर बात करें तो आज यहां 109 अफराद का टेस्ट मुस्बत पाया गया। वहीं जम्मू से भी आज 30 मामले सामने आए। जम्मू में आज 7 सिक्योरिटी एहलकारों में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं आज इस जानलेवा बीमारी से हुए अमवात में भी इजाफा हुआ। 29 तारीख को पटन में एक शख्स की मौत हो गई थी। इंतजामिया की जानिब से इसका नमूना लिया गया था और आज इसका नतीजा भी आया, जिसे ये पता चला कि वो शख्स भी कोरोना वायरस पॉजिटिव है। उधर स्कूलों को खोलने के हवाले से आज एलजी के मुशीर के शर्मा ने कहा कि सरकार ने स्कूलों को खोलने के हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया है। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो सैनिटाइजेशन का काम शुरू करें। फतेहशाही आइसोलेशन सेंटर से दौरान शब फरार होने वाले यमलर हंदवाड़ा के कोविड पॉजिटिव मरीज के वड़ीपुरा हंदवाड़ा में नमूदार होने के साथ ही वहां कस्बे में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान सब्जी फरोशों और राहगीरों के साथ राब्ते में निस्फ दर्जन अफराद को क्वारंटीन किया गया, जबकि सब्जी फरोशों की सब्जी मौके पर ही ज़ाया कर दी गई। मज़कूरा मरीज के दीगर राब्तों की तलाश जारी है और उस सोमो गाड़ी का भी पता लगाया जा रहा है जिसमें सवार होकर वो फतेहशाही से वड़ीपुरा हंदवाड़ा तक पहुंच पाया। ताहम तिब्बी अमला और पुलिस की टीम ने मज़कूरा फरार शख्स को घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में दबोचकर आइसोलेशन सेंटर वापस लाया। इस दौरान लोग सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की चूक इंतजामिया से कैसे हो गई। मज़कूरा मरीज दौरान शब इंतजामिया और तिब्बी अमले को धोखा देकर करीब 30 किलोमीटर का सफ़र करने में कामयाब हो गया और इंतजामिया और पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी, जबकि क्वारंटीन मराकज़ में तैनात अमले को लेकर भी लोगों ने शुबहात जाहिर किए। हंदवाड़ा कस्बे के लोगों ने मामले की पूरी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है, क्योंकि उनकी बकौल उनके फरार होने की वजह से कई लोग इस राब्ते में आकर मुतासिर हुए हैं। इस दौरान फतेहशाही आइसोलेशन मरकज़ के इंचार्ज को हंगामी बुनियादों पर तब्दील कर दिया गया, जबकि वरनू लौलाब में कोविड-19 मर्ज में मुब्तला फौत शुदा शख्स के रिश्तेदारों समेत 30 अफराद को क्वारंटीन किया गया है। जिला भर में कोविड-19 की पहली हलाकत हुई। उधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने न्यूज़ 18 को बताया कि मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है और मज़कूरा फरार हुए मरीज़ के खिलाफ पुलिस ने बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि इंक्वायरी भी जारी है। बात का बहुत ही अफसोस है कि अगर वो क्वारंटाइन में था, वो यहाँ कुपवारा से यहाँ तक कैसे आ गया। 40 किलोमीटर का सफ़र उसे किस तरह तय किया, वो किस गाड़ी में यहाँ आया, किन किन लोगों से मिला, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लोग भी छुपा रहे हैं। यहाँ सब्जी वाले के पास आया था, उससे कुछ 10 रुपया मांगे थे, इसकी भी सब्जी इस वक्त डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो वहाँ ड्यूटी पर मामूर हैं उनके लिए भी उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो भी ये जो वाक़ा पेश आए उसकी एक इंक्वायरी, फुल फ्लेज इंक्वायरी चल रही है जो एसडीएम लोलाब कर रहा है। तो एसडीएम लोलाब को 3 दिन में कहा गया है कि वो अपना एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करे और हम देखेंगे इसमें अगर किसी की नेग्लिजेंस होगी, चाहे वो सिक्योरिटी के उसकी ऑफिसर की होगी या ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स कुछ होंगे, तो जिसकी भी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी डेफिनेटली, और ये जो पेशेंट है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कुपवाड़ा जिले में इंतजामिया की कारकर्दगी पर उस वक्त बड़ा सवालिया निशान लग गया जब कोविड हॉस्पिटल फतेहशाही लोला में यमलर राजवाड़ का एक मस्बत मरीज वहां से फरार हो गया और हंदवाड़ा के बाजार में लोगों ने उसे घूमते हुए देखा, जबकि वहां पर उसने कई लोगों से बात भी की, गाड़ी में सफर भी किया और वहां पर सब्जी फरोशों और दीगर दुकानदारों से चीजें भी खरीदी। लोग सवाल करते हैं कि इंतजामिया उन लोगों के खिलाफ, उन मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे जो उस कोविड हॉस्पिटल में तैनात थे, और ये पता चलना चाहिए कि ये मस्बत मरीज किस तरह भाग गया और दूसरे इंसानों की जानें उसने खतरे में डाल दी। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।
जिला अस्पताल के 4 स्टाफ मेंबर समेत करगिल में आज 7 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। लद्दाख यूटी में अब कोरोना वायरस की मजमूई तादाद 41 तक पहुंच गई है। इनमें से 8 का ताल्लुक लेह से है, जबकि 33 अफराद करगिल के हैं। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा ट्रामा अस्पताल में जेर इलाज कोरोना मुतासरा खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ताहम इस दौरान मरीजा के रिश्तेदारों और अस्पताल में मौजूद दीगर मरीजों ने तिब्बी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मरीजा के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि जचगी के दौरान उसके पास कोई डॉक्टर या नीम तिब्बी अमला नहीं आया, जिसकी वजह से मरीजा ने अस्पताल के कॉरिडोर में बच्चे को जन्म दिया। ताहम तिब्बी लापरवाही की वजह से उसका प्लेजेंटा जिस्म में ही मौजूद रहा और बाद में इसे श्रीनगर मुंतकिल करना पड़ा। उधर इंतजामिया ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। डीसी ने अनंतनाग के सुधा का कहना है कि उन्होंने एसडीएम बिजबिहाड़ा को हक़ायक़ जानने की हिदायत दी। तमाम इब्तिदाई तहक़ीक़ात से कोई भी तिब्बी लापरवाही सामने नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में जच्चा बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। उसकी डिलीवरी लॉबी में हुई थी नियर ए डोर, और डिलीवरी के बाद भी कोई इसको देखने के लिए नहीं आया। तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे थे वो बाहर निकल आए, उन्होंने रोना स्टार्ट किया। दे शाउटेड, दे रेज़ स्लोगन्स। बिकॉज ऑफ दैट जब वो बाहर आ गए तो बाहर से ने किसी डॉक्टर को कॉल की कि आप आ जाए, कोई सीरियस केस है। तो वो टस से मस नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डिप्यूटेड है 24/7। यहाँ एक डॉक्टर डिप्यूटेड होता है एंड द कंसल्टेंट इज ऑलवेज ऑन कॉल आफ्टर 4 PM and whenever a medical officer on duty has some problem, she calls the consultant, and along with the consultant the patients are managed very well at our center. It is nothing like that. We are effortlessly working day and night for the benefit of the patients. I don't know why the patients are saying so. I got a call from my MS. I was at SDH. I got a call at 8:45. I rushed immediately with my staff nurse to this hospital. The patient was there. She was in labor, like since it was not her first child, it is her 3rd child. So she abruptly delivered, and I was very much there. She was not outside, she was inside the hospital. Who says the delivery was conducted in the outside the hospital premises? It was very much inside the hospital. But unfortunately, I'll tell you one thing, sir. Unfortunately, the attendants, they are making a fuss. डिलीवरी के मौके पे आप थे? Yes, I was there. I clamped. पीएमओ के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने भी शिरकत की। इस दौरान कोरोना की वबाई सूरत हाल और इससे निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी हासिल की गई। मिनिस्टर जो हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका शुक्रिया हूँ। आज उन्होंने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बुलाई, जिसमें उन्होंने जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में किस तरीके से यहाँ पर फ्यूमिगेशन, सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन सेंटर्स हो, रेड जोन्स हो, वहाँ पर किस तरीके से क्या चल रहा है। तो हमारा यही मानना है, जो हमने उनको अप्राइज किया, कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मिलजुल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग मिलजुल के हर एक जगह रेगुलरली सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन हर एक जगह, घर घर हो, क्वारंटाइन सेंटर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, रेड जोन्स हो, बफर जोन्स हो, डेली बेसिस पे वो चल रहा है। हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि जितने भी जो स्टैंडर्ड, जो चाहे स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, जितने भी चाहे कंट्री में किसी जगह पे है या आउटसाइड कंट्री पे है, खुसूसन यूएई से कई हमें वहाँ से लोग फ़ोन करते रहते हैं। तो मैं उनका ज़ाती तौर मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एश्योर किया कि ऐसे सारे बच्चों को जल्द अज जल्द वहाँ से वापस लाया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मामूसा पटन से ताल्लुक़ रखने वाले एक 86 साला शख्स की 29 मई को पटन में मौत के बाद आज कोरोना वायरस का मुस्बत केस सामने आया है। बताया जाता है कि मामूसा पटन का ये बुजुर्ग शहरी बीमार पड़ा था, जिसके बाद उनकी मौत वाक़ई हुई। उन्हें बाद में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पटन पहुंचाया गया था, जहां महलूक शख्स का यहां से कोरोना वायरस का नमूना लिया गया, जिसका आज 5 दिन गुजर जाने के बाद मुस्बत टेस्ट सामने आया। पटन बीएमओ के मुताबिक महलूक शख्स की तजहीज़ और तकफीन पर
प्रोटोकॉल के मुताबिक की गई। जी 29 को हमें यहाँ एक डेड बॉडी लाई गई थी हमारे पटर, उनका हमने सैम्पलिंग लिया था क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल वी आर सपोज टू टेक सैंपल फॉर एवरी डेड पर्सन, और उनकी हमने जो उनका दफनाया गया प्रोटोकॉल के तहत सबको हमने PPEs दी थी, और उनसे हमने उस वक्त भी यही एडवाइस किया था कि कोई क्राउडिंग गैदरिंग ना हो जाए, क्राउड ना आ जाए ज़्यादा। उसके बाद आज हमने उनका पॉजिटिव पाया, अब उनके पास हम जाएंगे, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को देखेंगे कौन कौन है, और इंशाल्लाह उनको भी हम क्वारंटीन में रखेंगे। कुलगाम से आज 13 कोरोना के मरीज सेहतयाब होने के बाद अपने घरों को रवाना किए गए। इस मौके पर DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, CMO डॉक्टर फाजिल कोचक, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जिला अस्पताल कुलगाम के अलावा कई दीगर अफराद भी मौजूद थे। अफसरान ने सेहतयाब अफराद को तहनीत पेश की। DC कुलगाम ने इन अफराद को घरों में बैठने की हिदायत दी। वहीं ज़िले में अभी भी 300 के करीब मुस्बत केस हैं। इनमें ज़्यादातर बैरून रियासतों से आने वाले अफराद हैं। शिमाली कश्मीर के कुंजर में पहली मरतबा मोबाइल वैन के जरिए कोरोना टेस्ट करने के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। कुंजर में दुकानदारों, हामला खवातीन और दीगर मकामी लोगों के नमूने लिए गए। शिमाली कश्मीर में पहली बार कुंजर में मोबाइल वैन के जरिए नमूने लेने का आगाज किया गया। बताया जा रहा है कि इस तरह की पहल से डॉक्टरों और लोगों को भी सहूलियात बहम पहुंचनेगी और टेस्ट कराने की रफ्तार भी बढ़ेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होता है कि इसमें पेशेंट और जो हमारा तिब्बी अमला होता है, जो ये स्वाब लेता है, जो ये सैंपल लेता है, उन दोनों के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होती हैं। तो अब हम हर किसी रेड जोन में या जहाँ पे भी हमें कोई वल्नरेबल ग्रुप लगता है, जहाँ पे भी हमें कोई क्लस्टर लगता है या जहाँ पे भी हमें कोई रैंडम सैम्पलिंग की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे ये मोबाइल कियोस्क लेके अपनी टीम लेके मैं जाऊँगा वहाँ पे, और हम वहीं पे लोगों की आसाइश के हिसाब से हम उनके स्वाब लेंगे। त्राल में कोरोना वायरस के बढ़ते वाकयात के बाद अवाम में मजीद तशवीश फैल गई है। इंतजामिया ने मजीद कई इलाकों को रेड जोन करार दिया है। इलाके में मुस्बत केसों की तादाद 30 तक पहुंच गई है, जबकि 2 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने मीडिया से बातचीत में ज़रूरी इक़दामात का खुलासा करते हुए बताया कि मुस्बत अफराद के साथ राब्ते में आए 60 से ज़्यादा अफराद को इंतजामिया ने क्वारंटीन में रखा, जबकि बंदिशों में भी सख्ती लाई गई है। कल शाम को ही जितने भी हमें जो पॉजिटिव पाए गए उनको हमने कोविड केयर हॉस्पिटल में उनको भेजा गया, एंड साथ ही साथ बड़ी एग्रेसिव कंटेक्ट ट्रेसिंग के साथ हमने जो प्राइमरी कंटेक्ट्स है या सेकेंडरी कंटेक्ट्स है उनको भी अभी भी बहुत सालों को क्या और भी कुछ कर रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है जो मेरे पास फिगर आया 65 ने प्राइमरी कंटेक्ट्स अभी तक हमने लिए हैं, एंड सेकेंडरी कंटेक्ट्स अराउंड 90 के करीब हमने उनको क्वारंटाइन किया है। बट अभी हम कर रहे हैं, मुझे लगता है और हमें क्वारंटाइन करने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम ज्यादा इसको दायरा फैलाएंगे उतना बेटर है, उतना हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा। त्राल में कोरोना की बढ़ती तादाद की वजह से कई क्वारंटीन सेंटरों में काम कर रहे अफराद मुतासर हुए हैं। सब जिला में काम कर रही आशा वर्करों में भी खौफ का माहौल पैदा हो गया है। आशा वर्करों का कहना है कि रेड जोन इलाकों में जाकर हामला खवातीन के साथ साथ आम लोगों को इस वबा के बारे में जानकारी फराहम कर रही हैं। उनका कहना है कि वो महकमे में आर्जी तौर पर काम कर रही हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी नौकरियों को जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। डोर टू डोर फेरन हेल्थ एजुकेशन दिवान, सैनिटाइजरस मुतलिक हेल्थ एजुकेशन दिवान, या सोशल डिस्टेंस मूजूब दिवान हेल्थ एजुकेशन। 24 घंटे आसान डोर टू डोर फेरन। सोन मुतालबा कि अस करिन सा इम्प्रूवमेंट क्या पेश, तो यम सन थन मंथली थी ना अस मत यीन इंसेंटिव क्या थन मंथली। जिला पुंछ में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इंतजामिया ने कई गांव को रेड जोन करार दिया है। झोलसमेन, बोहरा और सलातूरी गांव को भी रेड जोन करार दिया गया है। इन इलाकों की जानिब जाने वाली सड़कों को सील किया गया। पुलिस को भी तैनात किया गया है। लोगों की खिदमत के लिए इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों में मुलाजिमों को तैनात किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, और इसमें अब हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो टोटल नंबर है वो कोरोना जो पॉजिटिव है उनका बढ़कर 48 हो चुका है।
और इसमें से आज जो हमारे 8 पॉजिटिव आए, इसमें से 7 लोग जो हैं वो मुंबई से हैं जो कि ऑलरेडी क्वारंटाइन में है, और एक लेडी जो है प्रेग्नेंट लेडी जो जुलास एरिया से है वो पॉजिटिव आई है, और उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो वर्कआउट किए जा रहे हैं। इन द मेन टाइम हमारा जो जुलास सलोत्री पंचायतें जो हैं उनको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। जिला सांबा में भी कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया ने इंडस्ट्रियल अस्पताल बारी ब्राह्मण कोविड अस्पताल करार दिया है। जिले के नए मामलों को इस अस्पताल में रखा जा रहा है। बारी ब्राह्मण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की सदर ललित महाजन का कहना है कि इंतजामिया का यह फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि अगर इंडस्ट्रियल इलाके में वायरस फैलता है तो फिर इसे काबू कर पाना नामुमकिन है। उन्होंने इंतजामिया से कहा कि मरीजों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। हमने अपना हॉस्पिटल जो है उसको कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाया हुआ है। ऐसे ही ESI बड़ी ब्राह्मणा में है, वहाँ कोविड केयर सेंटर बनाया हुआ है। तो दोनों जगह पे हमारे जो केसेस हैं इस वक्त हमने पॉजिटिव केसेस रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ जम्मू में भी रखे हुए हैं। तो कुल मिला के हमारे 32 केसेस जो हैं वो अभी अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। अगर 50,000 से ऊपर IP रजिस्टर होते हैं तो उनको 100 बेड में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमने इनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है। इनके दिल्ली में जो हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं इनकी, उनको भी हमने रिक्वेस्ट मिनिस्टर साहब को भेजी है। पर इनको ये जो स्टेप लिया है इसको विड्रॉ करना चाहिए। इसको अल्टरनेट और कितने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनको अरेंजमेंट करना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आने वाले टाइम ये ना हो कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे अगर ये इन्फेक्शन फैल गया तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर को कोरोना और इससे पहले 5 अगस्त को लिए गए फैसले की वजह से मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। ऐसे में आज श्रीनगर में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें 33 शोबों जिसमें टूरिज्म, ट्रेड, हार्टिकल्चर के अलावा कश्मीर की इख्तिसादियात से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने जो पैकेज का ऐलान किया है वो कोरोना से हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया गया। उनका कहना है कि कश्मीर पिछले साल अगस्त से बदहाली के दौर से गुजर रहा है और यहाँ हुए नुकसान और यहाँ की सनतों को बचाने के लिए पैकेज दिया जाए। मार्च जो हमने लास्ट मीटिंग की थी दिल्ली में वो यूनियन होम मिनिस्टर साहब के साथ की थी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और MOS PMO के साथ की थी। वो मीटिंग पौने 2 घंटे चली और हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शेयर किया। वी वेर हर्ड पेशेंटली एंड थिंग्स वे आर डेलिब्रेटेड फॉर द रिवाइवल। किस तरह हम रिवाइवल पैकेज लाएं कश्मीर इकॉनमी को उठाने के लिए, क्योंकि सिंस 2-3 डेकेड्स पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज जब पूरा इंडिया अनलॉक की बात करता है, अनलॉक 1 की, तो डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी में एक कंसर्न था कि हम जब अनलॉक करेंगे और बिजनेस अपना फिर से खोलना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली वी नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उस बात करने के बाद आज हम 10 महीनों के बाद आपके सामने आ गए, क्योंकि हमारा जो पेन है, दर्द है, तकलीफ है वो 2 महीने का नहीं है, 2.5 महीने का लॉकडाउन नहीं है, पिछले 10 महीने का है। और आप देखिए पीछे आप जाएंगे तो 2 साल पहले, फिर 2 साल पहले, तो मेरे ख्याल से डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से फाइनेंशियल कैपेसिटी जो यहाँ के एक ताजिर की थी, एक बिजनेसमैन की कहें आप, वो ख़त्म हो चुकी है। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को वेलफेयर इनिशिएटिव्स, वो बिजनेस कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करने का एक टाइम आ गया है। एंड आई फील एज head of the business organization, this is the best time to come out with certain measures and policies जिससे कि यहाँ का बिजनेस एक बार फिर रिवाइव हो जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर ने सरकार से मुतालबा किया है कि उनके मुतालबात की तरफ तवज्जो दी जाए। बाबू हुसैन मलिक ने कहा कि सरकारी मुलाजिमों और डेली वेजर्स के बारे में अपनी तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने मुतालबा किया कि डेली वेजर्स की मुस्तकिली और उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जिन मुलाजिमों की तनख्वाह कम है उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। मैं प्रेस क्लब के अंदर जो है हड़ताल पर भी बैठे रहे, श्रीनगर में भी रहे, प्रताप पार्क के अंदर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। सरकार ने उनके साथ बड़ी दफ़ा बातचीत भी की, लेकिन वो मसला अभी जूँ का तू ही है, उनका मसला हल नहीं है। हम कहते हैं उनको भी कंटिन्यूशन किया जाए, चाहे वो कंटेक्चुअल टीचर हैं या लेक्चरर हैं।
इसी तरीके से NHR एम्प्लॉइज़ हैं या होम गार्ड के हैं, SRO 24 है या SRO 202 है, हम कहते हैं SRO 24 और SRO 202 को भी रिवोक किया जाए। मौजूदा हालात की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं और इम्तिहानात और नतायज का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। कई तलबा के ग्रेजुएशन का नतीजा आना बाकी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर बैंक और दीगर महकमों में मुलाजमत का अमल शुरू हो रहा है। तलबा ने इंतज़ामिया से अपील की कि नतायज से पहले ही उन्हें इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जाए और अगर वो मुंतखब होते हैं तो ग्रेजुएशन के नतायज के बाद ही उनके तकर्री की जाए। हमारे रिजल्ट्स आए होते हैं, बट जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के अप्रहेंशंस और कंसर्न्स है रिगार्डिंग द रिसेंटली नोटिफाइड JK बैंक जॉब्स एंड अपकमिंग एंड फॉर द अपकमिंग अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से और JK बैंक ऑफिशियल से हमें इन सभी पोस्टों में एलिजिबल रखा जाए। हमारी ये डिमांड है कि हमें भी जो पोस्ट निकले हैं अभी उनके लिए एलिजिबल रखा जाए। हम अभी लास्ट सेमेस्टर में हैं, अगर देखा जाए तो हम अभी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई होती, लेकिन ड्यू टू पैंडमिक अभी ये है कि 1-2 दिन की बात नहीं है और 1 हफ्ते की भी बात नहीं है, ये कितना लंबा जाएगा हमें नहीं पता। तो ये बात है कि हमें इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रखा जाए, हमें इजाज़त दी जाए कि हम इन एग्ज़ाम्स में बैठे। कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात में लगातार कमी आने के बाद बांडीपुरा में जिंदगी मामूल पर लौट रही है। लोगों ने काफ़ी हद तक मामूल की सरगर्मियां बहाल कर दी थीं। ताहम कल दिन ढलते ही इस बात का खुलासा हुआ कि बांडीपुरा मार्केट में एक कसाब कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। अहम शरीफ इनामी इलाके में भी कोरोना वायरस के 4 मुस्बत मामले सामने आए। इसके साथ ही पूरे मार्केट में फिर एक बार वीरानी छा गई। अहम शरीफ को रेड जोन करार देने के अलावा बांडीपुरा म्यूनसिपल हदूद में सख्त बंदिशें आयद कर दी गईं। दरियासना LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज बांडीपुरा का तफसीली दौरा करके कोविड-19 के हवाले से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जिले में जारी तरक्याती कामों के मुताल्लिक भी जानकारी हासिल की। म्यूनसिपल कमेटी गांधरबल के काउंसलरों ने मौजूदा सदर एडवोकेट अल्ताफ अहमद लून के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल की। एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी हाजन और एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल कमेटी गांधरबल की ज़ेर निगरानी फ्लोर टेस्ट हुआ। अब्दुल मजीद मीर और दीगर की जानिब से दाखिल करदा तहरीक अदम एतमाद के हक़ में 9 वोट आए, जबकि 8 वोट उसके खिलाफ है। मुबस्सिर के मुताबिक नायब सदर इंतखाबात होने तक सदर का ओहदा संभालेगा। लोगों ने हमें चुना है और काम करने के लिए आए थे, तो अल्ताफ साहब एक बेहतरीन इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम के मामले में थोड़ा नाअहल रहे हैं। तो गांधरबल के आवाम के लिए जो हमने सोचा था हम कुछ करें, वो चीज़ नहीं हो पाया। और जब म्यूनसिपलिटी में आप काम नहीं कर पाओगे तो लोग हमसे मुतमईन नहीं है, हमें लोगों को जवाब देना पड़ा। हमें उम्मीद है अब जो नए प्रेसिडेंट साहब आएंगे इंशाल्लाह गांधरबल के आवाम को इस चीज़ों से राहत मिलेगी। और यहाँ पे जो एक सिस्टम कायम हुआ था कि कोई भी काम जो होता था वार्डों में काउंसलरों से पूछा नहीं जाता था, सिर्फ मतलब मनमर्जी काम चलते थे, उसके खिलाफ हमने ये चीज़ किया है कि प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी गांधरबल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो थी, तो उसका फ्लोर टेस्ट बाज़ाब्ता था, जिस पर हाई कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा था। तो चूंकि डिप्टी कमिश्नर साहब कानून के राव से डिप्टी कमिश्नर साहब को इस पर नए इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए टाइम, डेट एंड वेन्यू फिक्स करना है, तो हमने उसको लिखा है कि इसके लिए बहुत जल्दी टाइम डेट, तब तक कानून के राव से, एक्ट के राव से वाइस प्रेसिडेंट इसका झील वुलर और दरिया जहलम में मछलियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए महकमे फिशरीज ने सुपुर में फिश सीड के स्टॉक का जायजा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद शफी वानी ने दीगर अफसरान की मौजूदगी में स्टॉक का जायजा लिया। आपको बता दें कि झील वुलर सैकड़ों मछुआरों के रोजगार का जरिया है और महकमे की जानिब से इस इक़दाम से इन लोगों में नई जान बख्शी है। मोहम्मद शफी वानी ने कहा कि महकमे फिशरीज में करीब 1500 लोग दर्ज हैं और डिपार्टमेंट उनकी फलाह बहबूद के लिए हर तरह का इक़दाम उठाएगा। आज करीब 5 लाख कॉप फिश सीड को झील वुलर और दरियाए जहलम में डाला गया। हर साल की तरह इधर झील वलर में स्टार्ट करने जा रहे हैं।
क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक फिक्र रहती है डिपार्टमेंट को, क्योंकि इसमें कम से कम हमारे बारामूला एरिया में 1500 माहीगीर हैं जिनका पूरा रोजी रोटी इसी पर चलता है। तो इस सिलसिले में आज हमने इधर ये स्टॉक किया जो नेशनल फिश सीड फार्म मानसबल से लाते हैं। तो कितना आपने आज यहाँ पे डाला? लगभग 6 लाख तक जो हम नंबरिंग होती है तो ये हमने कर दिया। डीसी बारामूला डॉक्टर जे नेतू ने आज जिले के कई तामीराती कामों का जायजा लिया। इस दौरान डीसी के साथ डायरेक्टर तालीम सज्जाद हुसैन गनाई और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ERTC ब्रिज, कौमी शाहराह पर मरम्मत के काम का भी जायजा लिया। गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज में साइंस ब्लॉक के काम का भी डीसी ने जायजा लिया। डीसी ने इस दौरान काम को तेजी से अंजाम देने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की हिदायत दी। मुगल रोड को अगले हफ्ते चेरी ले जाने वालों के लिए खोल दिया जाएगा। बागबानी से वाबस्ता लोगों ने इंतजामिया के इस फैसले की काफ़ी सताइश की है। शोपियां इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि मुगल रोड को खोल दिया जाए ताकि लोग ज़िला राजौरी और पुंछ चेरी लेकर जाएं। मुगल रोड पर कुछ दिन कबल बर्फ़ हटा दी गई है, अलबत्ता कुछ हिस्सों में अभी बर्फ़ जमा है। ये हिस्से ज़िला पुंछ के अहाते में आते हैं। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने जानकारी देते हुए बताया कि रोड को सिर्फ चेरी ले जाने वाले लोगों के लिए ही खोला जाएगा। डिविजनल कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से जितना जल्द मुमकिन हो सके तो इसको खोला जाए, क्योंकि चेरी की जो लाइफ है वो बिल्कुल कम होती है। और दूसरा हमारा जो माल पड़ा हुआ है, हम आला हुकाम और डिप्टी कमिश्नर से अपील करते हैं कि उसके लिए भी मतलब इंतज़ाम किया जाए। गवर्नमेंट लेवल डिसीजन अबाउट नॉट टू ओपन इट एज ऑफ नाउ। एज फार एज क्लियरेंस इज कंसर्न्ड तो शोपियान साइड से पूरी रोड क्लियर है, सारी स्नो और स्लिप्स रिमूव कर दी गई हैं और कंप्लीट पैसेज है। पुंछ साइड से मुझे बताया गया है कि तकरीबन 200 मीटर में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स और स्लिप्स हैं, इसकी वजह से इट इज़ नॉन मोटरेबल। बट इन एनी केस अभी गवर्नमेंट से हमें कुछ गो हेड मिलेगा उसको रिज्यूम करने का, एंड दैट टू ओनली फॉर इवैक्यूएशन ऑफ चेरी स्टॉक ऑफ। चीफ इंजीनियर PHA कश्मीर अब्दुल वाहिद ने कुपवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो तमाम इलाकों में पीने के साफ पानी की सप्लाई बहाल रखें ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की रुकी पड़ी रकूमात को बहुत जल्द बागजार किया जाएगा। कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको जल्दी ही एड्रेस करेंगे और उनके प्रोजेक्ट कुछ एकॉर्ड्स करने में हैं, कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और कुछ एक्शन साहब की भी अभी मौजूदगी का उन्होंने कंट्रैक्टर साहब ने मसला उठाया, वो अवेलेबल नहीं है। वो नया एक्शन हमारा पोस्ट हुआ है, होपफुली वो अगले हफ्ते ज्वाइन करेंगे तो इनके मसाइल जो है इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। पब्लिक के भी कंप्लेंट्स थे तो वो स्कीमें हमने रिस्टोर किए, उनका भी हमने जायज़ा लिया। उनमें कुछ ब्लॉकेज थे तो वो उन्होंने निकाला है, तो हर गांव में इन्होंने मुझे बता दिया कि पानी चल रहा है। तो बैलेंस की जो प्रोग्रेस है साइड पे उसको देखने के लिए अभी हम। डोडा के चकरा धंदाल कास्तेगढ़ इलाके में हाई टेंशन तार गिरने से 3 अफराद बिजली से जख्मी हो गए हैं। एक की हालत बेहतर बताई जा रही है, ताहम 2 की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि ये तीनों अफराद अपने ज़मीनों में काम कर रहे थे और अचानक हाई टेंशन गिर गया। लोगों ने PDD पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने इनको कई मरतबा आगाह किया था। लोगों का ये भी कहना है कि डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया गया। लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी एम्बुलेंस फराहम न करने का इल्ज़ाम लगाया। और असल में लापरवाही जो है ये डिपार्टमेंट के भी है। वहाँ पर कीरियों के ऊपर जनरल लाइन लगी हुई है, पोल जो है वो दरख्तों के साथ लगे हुए हैं, तारें भी, और तारें भी जो है वो क्रेट की तारें लगी हुई है। पहले भी थोड़ा थोड़ा हादसा हुआ, हमने इनको इतला किया लेकिन किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ पर किसी किस्म की फैसिलिटीज़ है ही नहीं, ना एम्बुलेंस है ना कुछ है। हमने फ़ोन किया, कोई एम्बुलेंस नहीं आगे से आई और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या चाहेंगे, जस्टिस चाहेंगे हम, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए वगैरह जो भी है, और इन डिपार्टमेंट जो भी इनको इसमें जो क्या नाम है जो कसूरवार होंगे उनको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार इन्होंने मुझे सेंक्शन भी किया यहाँ से 25 पोल, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने मोड चेंज कर दिया और बाद में हमें इन्होंने 10 पोल दिए, और 10 पोल जहाँ हमें 50 पोलों की ज़रूरत है वहाँ 10 पोलों से कुछ कम नहीं बनेगा। ये सारी जो है लापरवाही डिपार्टमेंट की है, हमारे एक्शन साहब की है, हमारे JE साहब की है। मैंने ज़िला डोडा के बगला भारत इलाके में भालू ने एक बकरवाल पर हमला किया।
وائلڈ لائف حکام کے مطابق اس حملے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ان کو نازک حالت میں ضلع میں داخل کرا گیا اسپتال میں، جہاں سے ان کو جموں منتقل کیا گیا. علاج معالجے کے بعد اب وہ خطرے سے باہر ہیں. لوگوں میں کافی دہشت کا ماحول ہے. انہوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے اپیل کی کہ اس بھالو کو پکڑا جائے. وائلڈ لائف کے ایک افسر نے بتایا کہ ایک ٹیم بھالو کی تلاش میں ہے اور اسے جلد پکڑا جائے گا. جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی لیڈر و سابق وزیر یشپال کنڈل نے مرکزی حکومت پر ایک بار پھر نشانہ سادھا. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے جموں کشمیر کے عوام پر بھاری ٹیکس اور روزانہ استعمال میں آنے والی چیزوں کی قیمت میں اضافہ کر رہی ہے. یشپال کنڈل کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار نے روڈ ٹیکس لگایا، ٹول پلازا میں اضافہ کیا، بجلی کو پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ ہے. ایل پی جی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ 4G کی عدم دستیابی سے لوگ کافی پریشان ہیں. کنڈل نے حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو کچھ راحت دی جائے. گزشتہ روز ضلع پلوامہ کے 14 نئے کورونا کیس مثبت سامنے آنے کے بعد پلوامہ ڈسٹرکٹ اسپتال کی لاپرواہی کا معاملہ سامنے آیا. اسپتال کے 8 ڈاکٹروں سمیت نیم طبی عملے کو کوارنٹین کیا گیا. ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ میں کچھ دنوں قبل ملک پورہ اور آری ہلت سے تعلق رکھنے والے 2 مریضوں کا آپریشن کیا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ دونوں کا آپریشن کووڈ ٹیسٹ کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی کیا گیا تھا. لے بی جے پی یونٹ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر سخت برہمی کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ سابق کانگریس لیڈر کی آخری رسومات کی ادائیگی کے دوران لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا. انہوں نے اس معاملے میں انکوائری کی مانگ کی. سے لداخ کو ایک اچھا لیڈر کا کھونا پڑا اور ساتھ میں ایک بہت ہی دکھد کی بات ہے کہ وہ لداخ کا پہلا کووڈ-19 کا پیشنٹ کے روپ میں ان کا نِدان ہوا. تو میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس نے اس کے بعد ان کے نِدان ہونے کے ہی دن صبح سے لے کر شام تک وہاں پہ بہت سارے وی آئی پیز اور بہت سارے. شوپیاں میں آج بی پی ایل راشن کارڈ رکھنے والی کئی خواتین نے احتجاج کیا. ان خواتین نے بینک پر الزام لگایا کہ جن دھن یوجنا کے تحت انہیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے کافی چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ بینک ملازمین غیر ضروری مشکلات پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ کئی مرتبہ بینک آئی ہیں مگر فارم نہیں بھر سکیں. انہوں نے انتظامیہ سے اس معاملے میں مداخلت کی مانگ کی. بھدرواہ میں کورونا وائرس کے معاملے بڑھنے کے بعد بی ایم سی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں کے ساتھ ساتھ کوارنٹین سینٹروں اور اسپتالوں میں دن میں 2 بار سینیٹائزیشن کا کام انجام دیں گے. بی ایم سی نے صفائی اور کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے طریقوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بھی مہم شروع کر دی ہے. بی ایم سی کے لوگ ہر علاقے میں جا کر لوگوں کو آگاہ کریں گے. ضلع رامبن میں کورونا وائرس معاملوں میں ہوئے اچانک اضافے کے بعد ایس ایس پی رامبن حسیب الرحمان نے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ بانہال اور جواہر ٹنل کا دورہ کیا اور زمینی سطح پر موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. وادی کشمیر سے صوبہ جموں کی جانب داخل ہونے والے ٹریفک کو لے کر پولیس کی جانب سے سخت احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں تاکہ کورونا کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر دیویندر رانا نے حکومت کی جانب سے 15 جون سے اسکولوں کو کھلنے کے فیصلے پر تنقید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کورونا مہاماری کے دوران حکومت کا لیا گیا فیصلہ بالکل غلط ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس مہاماری کو پوری طرح سے قابو نہیں کیا جاتا تب تک اسکولوں کو بند رکھا جانا چاہیے. اسکولوں میں وہ انفراسٹرکچر ہے نہ ہی وہ ٹریننگ ہے کہ کووڈ کے خلاف ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں. یہ فیصلہ فوری طور پہ رد کر دینا چاہیے اور ایسا کوئی بھی منصوبہ اگر کہیں پہ بھی ہے اس کو خارج کر دینا چاہیے. والدین سے پوچھا نہیں گیا، والدین کا مشورہ نہیں لیا گیا. کیا والدین تیار ہیں؟
मारूफ कश्मीरी गुलकार वहीद जिलानी ने 7 जून को एक ऑनलाइन कंसर्ट का एहतमाम किया है। एक कश्मीर की नौयत का ऐसा पहला कंसर्ट होगा जहां कश्मीर के फनकार, गुलकार और मौसीकी का ऑनलाइन जुड़ेंगे। लॉकडाउन की वजह से फनकार कंसर्ट नहीं कर पाए हैं, ये उनके लिए एक अहम मौका है। वहीं लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में तन्हा होकर रह गए हैं, इन लोगों के लिए भी ये कंसर्ट फ़ायदेमंद साबित होगा। 7 जून को शाम 7 बजे से 9 बजे तक फेसबुक लाइव के जरिए दुनिया भर में बसे कश्मीरी फनकार और कश्मीरी मौसीकी से जुड़े लोग जुड़ जाएंगे। जो एक डिजिटल ऑनलाइन म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है, हम 7 जून को 6 से 9 बजे तक आपके सामने लाइव आएंगे फेसबुक के ज़रिए। करार प्लेटफॉर्म यहाँ के फनकारों के लिए एक ऐसा मौका है, जो कि लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया सिमट गई है, तो ऐसे में एक नया तरीका ढूंढना पड़ा हमें भी बाकी लोगों की तरह, ताकि हम फनकारों अच्छे फनकारों को सुने, उनके फ़न को दुनिया भर के सामने लाएं, और ख़ासकर जो हमारे टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक तहरीक बनाए, इसको मूवमेंट बनाए, इस प्लेटफॉर्म को। जो ट्रूली जेन्युइन और डिज़र्विंग आर्टिस्ट होंगे, हम उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको मदऊ करेंगे और लोगों तक उनका फ़न पहुंचाएंगे। जो दुनिया भर में लोग हैं कश्मीरी मौसीकी ख़ासकर सुनने वाले हैं, दिलदादा हैं कश्मीरी मौसीकी के, या फ़नकार हैं या फ़नकारों को हौसला अफजाई करने वाले लोग हैं, वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि इस प्लेटफॉर्म को, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम कंटिन्यू करें। आज के हालात में जब हर शख्स अपने आप को बहुत तन्हा और कटा कटा महसूस कर रहा है, ये कंसर्ट मुझे उम्मीद है जोड़ने का काम करेगा। और हम जानते हैं कि मौसीकी में रूह को सुकून बख्शने की और जोड़ने की बड़ी ताकत होती है। और ये सोच और ये प्लान जो आपने बनाया है, ये हमारी रियासत के फनकारों को, गुलकारों को, मौसीकारों को, और जो हमारी रियासत के दूसरे फनकार दूसरे शहरों में हैं, हिंदुस्तान के मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर भी हैं, वो सब भी इससे जुड़ सकते हैं। करार 7 जून इतवार को कश्मीर म्यूज़िक क्लब की तरफ से वहीद गिलानी की रहनुमाई में एक डिजिटल इंटरनेशनल ग्लोबल म्यूज़िकल कॉन्सर्ट किया जाएगा। इस कॉन्सर्ट में कश्मीर के कलाकार दुनिया भर से आएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़ेंगे इसके साथ। खुशी की बात यह है कि कश्मीर की आवाज़, कश्मीर के साज, कश्मीर की मौसीकी और कंपोजिशंस सबको देखने को मिलेगी। ये इसलिए भी खुशी की बात है कि पहली बार वहीद गिलानी ने ये इनिशिएटिव ले लिया है कि वो सारी दुनिया में कश्मीर का कॉन्सर्ट सुना जाएगा। वहीद जिलानी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं और म्यूज़िक के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कश्मीरी म्यूज़िक को लेके वो कंसर्ट्स, प्रोग्राम्स मुनक्किद करते ही रहते हैं। कश्मीर में, हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में और दुनिया में बाकी शहरों में भी जाते रहते हैं। इस बार वो अपनी नवियत का एक पहला प्रोग्राम लेके आए हैं जो ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा, फेसबुक के ऊपर। मुझे बहुत बेसब्री से इस प्रोग्राम का इंतज़ार है। On 7th June, from 6 p.m. to 9 p.m. there will be an online event which is first of its kind, and the name is Qarar. और ये कश्मीर म्यूज़िक क्लब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिकॉज अभी लॉकडाउन चल रहा है। Most of the artists couldn't perform from last 3 months, so it will be a wonderful initiative, wonderful platform, wonderful opportunity for them. और दुनिया भर में बहुत सारे folk artists, Kashmiri musicians, performers, singers हैं, and many of them will be part of this event. So my best wishes.